حسینی صاحب بجوات سے تشریف لائے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد پہ ویندے نے تے پتہ لگ جائے کس طرح سننا تو سا۔ نعرہ رسالت، اجے نہیں بولے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، انتظامیہ کا اس کاوش کو کرنا قبول و منظور فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تمام احباب اس یقین سے درود پاک پڑھ لیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں اور زہرا کے بابا سنتے ہیں۔ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حدود تاج سدرات حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور انہیں خبر ہے وہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ایک بڑی ذرا محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک ہی کلام کو چند اشعار پیش کر کے
का सानू केड़ा काबा दसना है साडा काबा यार दियां गलियां उस गली दा गदा मैं असा काबा समझ लिया ओ गलियां जिथे यार ने लाया तलियां उस गली कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं तुझसे शैदा हजार फिरते हैं वो सुए लालादार फिरते माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में आला हज़रत का कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद कासिम अल हुसैनी साहब। अल्लाह ताला के सोज़ो गुदास में मज़ीद बरकतें और वुसअत अता फरमाए। हम खुशकिस्मत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अजीम शख्सियात की ज़ियारत भी करते हैं और इनके खूबसूरत कलिमात भी सुनते हैं। और 31वां अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस जिसमें आप सब हाजिर हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और आज की इस मजलिस में
اگر ایک ہمارے شخصیت کا ذکر نہ کیا جائے، ہمارے محترم المقام جناب حافظ محمد مشتاق صاحب جو بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ آج کی اس خوبصورت بزم کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے پاکیزہ ذکر پاک کا صدقہ، اللہ رب العزت حافظ صاحب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ 31ویں یہ سالانہ یا رسول اللہ کانفرنس، میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ اس کانفرنس کی انتظامیہ جناب چودھری شاہد محمود صاحب، جناب صوفی محمد اکرم صاحب، جناب حافظ محمد رمضان صاحب اور اس کے علاوہ دیگر اراکین انجمن غلامان مصطفیٰ کے عہدے داران اور ذمہ داران جو سال ہر سال سے پیارے آقا علیہ السلام کی ذکر پاک کی اس خوبصورت کانفرنس کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں، یہ سب واقعتاً مبارکباد کی حقدار ہیں۔ اور آپ اہلیان گوندل بھی کہ الحمدللہ جیسے قاری نبی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کانفرنس کا ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اہلیان گوندل کے عقائد محفوظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ حق و سنت عطا فرمائے۔ اب میں استاد العلماء والفضلاء رئیس المتکلمین حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب جو اسٹیج کی زینت ہیں اور خوبصورت گفتگو فرمائیں گے، لیکن آپ سے قبل خطبہ استقبالیہ کے لیے میں اسی اپنی مرکزی جامع مسجد کے امام جناب مفتی محمد زاہد تبسم صاحب دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلمات سے نوازیں۔ میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے قبلہ استاد محترم کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بندہ ناچیز نے ایک مرتبہ گزارش کی تو آپ نے گزارش کو قبول فرمایا اور ہماری اس گزارش پہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاب اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ جناب مفتی محمد زاہد تبسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ واجب القدر سامعین احتشام، آج کی یہ خوبصورت بزم جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انعقاد پذیر ہے، بحمدہ تعالیٰ 31 میں یہ سالانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو خوبصورت ماحول میں منعقد کی گئی ہے، میں نہ کوئی گفتگو کرنے کا اہل ہوں، اور جب مرشد اور استاذ موجود ہوں تو پھر بولنا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ زبان کو حرکت دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف میں اپنے استادوں سے اکتساب فیض کرنے کے لیے اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے انشاءاللہ میں آپ کی سماع خراشی کرنے کا باعث بن رہا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کائنات اعلان فرماتا ہے کہ جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے رب اسے اور عطا کرتا ہے۔ اب شکر 2 قسم کا ہے، ایک شکر بندہ اپنے رب کا ادا کرتا ہے اور دوسرا شکر اس کے بندوں کا ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شاکر بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ میں اللہ کا شکر اس بات پر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ خوبصورت ماحول اور اس کے پیچھے ایک طویل زندگی کا حصہ، جن دوستوں نے اپنی کاوشیں، اپنی دن رات تگ و دو اور محنت کو بروئے کار لاتے ہوئے خوبصورت بزم کا انعقاد کیا،
اور اللہ نے توفیق خاص عطا فرمائی۔ رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ احسن عمل، احسن اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرا شکریہ آپ دوستوں کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دوست ابا بڑی محبت سے تشریف لائے اور اس خوبصورت بزم کو سجا کر، اور ایک وقت کے محقق اور شیخ اور بحمدہ تعالی ہزاروں لاکھوں علماء جو آپ کی نسبت سے فیض یاب ہو چکے ہیں، اللہ سب کو دائم کی سعادت عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ استادوں کی بارگاہ میں بس اظہار تشکر کے لیے کھڑا ہوں۔ حضور اجازت ہو تو 2 جملے آپ کی اجازت سے۔ ایھا الضیوف، یہ جملے صرف استادوں کو سنانے کے لیے، تاکہ میرا تھوڑا سا جو اپنے اندر کمی ہے وہ مزید استادوں کے فیض سے پوری ہو جائے۔ ایھا الضیوف جئت امامکم لإظهار تشکر انا اود ان ابین لکم اشیاء عدیدہ۔ اولا نحن نفرش قلوبنا تحت قدامكم الممونة لأن أنتم العلماء الحق ومشغولون في المعاملات الدينية كل حين۔ أخص الخواص مرادي مرشدي ومربي ومحسني وآقائي ومولاي ومهجاي ومأواي لشيخنا الكامل فضيلة الشيخ حضرت ضياء الأمة جسٹس بی محمد کرم شاہ الازہری الذي فخر علیہ۔ حضور ضیاء الامت استادوں پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن پر استاد فخر فرماتے ہیں۔ الذي فخر علیہ فضیلۃ الشیخ حضرت العلام استاذی واستاذنا الکریم مفتی بیر محمد اسلم ردوی اطال اللہ عمرہ۔ نحن ندعو اللہ تعالی أن يرزقكم وإياكم عمرا خضريا ويرزقكم شكرا جزيلا كريما أطال الله عمره۔ ان الفاظ کے ساتھ میں جملہ صرف عوام کے لیے، دل بہت تھا کچھ باتیں کریں لیکن اب وقت نہیں ہے۔ جی تو تھا کہ رہوں گا اور جی بھر کے رہوں گا، جی تو تھا کہ رہوں گا جی بھر کے رہوں گا، لیکن تنگی داماں نے مجھے روکنے نہ دیا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے استاد کریم جناب حضرت العلام استاد العلماء زینت العلماء اور فخر العلماء استاد المحترم مفتی بیر محمد اسلم ردوی آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیے۔ آپ کی آمد سے بھرپور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ سارے ہاتھ اٹھا کر آخری بندے تک ہاتھ بلند کرے اور اپنی ارادتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت علماء حق اہل سنت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على مظهر جمال وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مہربانا سلطانا تیری شانہ بڑے کرم کمائنی بھلا ہوئی ککھوں وچ بیرو دے سن بخت میرے ککھوں لگ بنائنی بھلا ہوئی پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے بلا ہوئی میں پوچھے آئی جن کھولوں کدی تُم عید منائی ہائی اس سکیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہائی وچ ملک علم دے مقدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان 31ویں سالانہ یا رسول اللہ کانفرنس انتہائی تجھ و احتشام سے گوندل کی مرکزی جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے میں جناب برادر چودھری محمد شاہد صاحب صوفی محمد اکرم صاحب اور بھائی محمد رمضان صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقاء ان کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم تمام دوستوں کی محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ویسے یہ سونے کا وقت ہے یا پھر رونے کا وقت ہے یہ سونے کا وقت ہے یا کسی کے رونے کا وقت ہے جتنا حل سویرے جتے وہ حالی ہو گئے پکے تم ہی جاگ محمد بخشا مگر یاد تیرے وقت کے تو برادران اسلام بس وہ سرکار کی
अजमत का जिक्र हुआ, हुजूर के मोजे का जिक्र हुआ, चांद दो टुकड़े हुआ, तो ये हवा भी वजन में आ गई और ये साहिबान भी वजन में आ गए। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की करनी है। एक भाई बीमार हैं, आप साथ साथ उनके लिए दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, मैंने कुरान मुकद्दस की वो आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया है जिसके बारे में सरवरे सरवरा, दिल बरे दिल बरा, नूर मुजस्सम नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाते हैं, जो बंदा सलाते मफरूज़ा के बाद फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का आदी हो तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा है। बस यूं समझे कि बस मौत का पर्दा दरमियान से हट जाए तो वो सीधा जन्नती है। तो गोया आज मैं जन्नत का टिकट उसकी इबारत पढ़ के आपको सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन बारिश की मर्जी नहीं, आप अंदर चले जाएंगे। फितरत से लड़ाई करने का क्या फायदा है भाई? अल्लाह के कुदरत से लड़ाई हो सकती है। अंदर चल एक दिन इस जहान फानी को छोड़ना है, सांस की डोरी टूटनी है और हमने इस जहान को खैराबाद कहना है, तो कितना अच्छा तोहफा है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आखिरत बनाने के लिए अता फरमाया कि नमाज पढ़ो और नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को अपना मामूल बना दो। सुभान अल्लाह, आज की कॉन्फ्रेंस का ये तोहफा कबूल फरमाए। हजरात, अल्लाह करीम ने आयतुल कुर्सी की तमहीद कितनी खूबसूरत बांधी है, इसका आगाज कितना खूबसूरत है। आगाज ही इस्मुल जलाला से किया गया है। अल्लाह का नाम, ज़ाती नाम इस्मुल जलाला, जो मुतज़म्मन व जमी कमालात है, और अगर आप इसकी बरक़ात देखना चाहें, इसकी वसअतों को देखना चाहें, तो फिर ये सुन लें कि मुतज़म्मन व जमी कमालात होने का मतलब ये है कि जब आपने लफ्ज़े अल्लाह के साथ रब को याद किया तो गोया उसमें सारी सिफात आ गई। आपने अल्लाह को तमाम अस्माए हुस्ना के साथ याद किया। और हजरात, जब बंदा पढ़ता है अल्लाह, तो अल्लाह करीम अपने करम के सारे दरवाजे खोल देता है। शान रहमानियत ये उसके करम का एक दरवाजा है। अर-रहमान उसकी सिफत है, ये उसके करम का एक दरवाजा है। अर-रहीम ये उसके करम का एक दरवाजा है। अल-करीम ये उसके करम का एक दरवाजा है। अल-जब्बार ये उसकी इनायत का एक दरवाजा है। अल-जव्वाद ये उसके जूद का एक दरवाजा है। तो जब बंदा लफ्ज़े अल्लाह के साथ अपने रब को याद करता है तो अल्लाह करीम करम के सारे दरवाजे उसके ऊपर खोल देता है। और यहीं पे फिर रुक के जरा नमाज की तरफ लौट जाएं। वो अल्लाह करीम ने नमाज कितनी कीमती चीज अता फरमाई कि जिसका पहला जो जुमला, पहला कलमा जो अदा करते हैं, नमाज का आगाज भी अल्लाह पे होता है और इख्तिताम भी अल्लाह पे होता है। अल्लाहु अकबर यहीं से शुरू करते हैं और जब सलाम फेरा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, मतलब क्या हुआ? और मेरे दोस्तों, गौर करने की जरूरत है। अल्लाह करीम ने नमाज की सूरत में इतनी बड़ी बरकत वाली चीज अता फरमा दी कि जब तुम नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते हो, जैसे तूने तकबीर तहरीमा कही तो अल्लाह करीम ने तेरे लिए करम के सारे दरवाजे खोल दिए। सारे करम के दरवाजों से तेरा इस्तिकबाल हुआ। अल्लाह करीम अपनी शान रहमानियत से भी तेरा इस्तिकबाल कर रहा है, शान रहीमियत से भी तेरा इस्तिकबाल कर रहा है, शान जब्बारी से भी तेरा
کر رہا ہے، شام شکوری سے بھی تیرا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے سارے دروازے کھول دیے، اور جب تم نماز سے فارغ ہوتے ہو، جب تم نے سلام پھیرا، تو آخری جو کلمہ زبان پہ آتا ہے وہ بھی اللہ کریم کا اسم الجلالہ ہے۔ تو گویا اللہ کریم جاتے ہوئے بھی تجھے سارے دروازوں سے بھیک عطا فرما کے الوداع کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے اور کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اب بھی کسی کو لوگ سخیوں کے دروازے تلاش کرتے ہیں کہ وہاں سے بھیک ملے گی، وہاں سے خیرات ملے گی۔ لوگوں سارے دروازے چھوڑ کے اللہ کریم کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہاں سے جب بھیک ملتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا لوگو وہ اللہ کریم کی ذات گرامی ہے جس کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے، اس کی ذات یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے، لا جلال ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ ذرا اس آیت کو اس ماحول کی طرف لے چلو جہاں لوگ لات کی پوجا کر رہے تھے، منات کی پوجا کر رہے تھے، عزا کی پوجا کر رہے تھے، حبل کی پوجا کر رہے تھے، سورج کی پوجا کر رہے تھے، چاند کی پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، فطرت کے نشانوں کی پوجا کر رہے تھے، مخلوق کی پوجا کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور لوگوں معبودان باطلہ کو چھوڑو اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس لیے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ کریم کی توحید کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ اللہ کریم بولے اللہ کریم، اللہ کریم زندہ ہے، القیوم، وہ بذات خود قائم ہے اور جس کو جتنا عرصہ چاہے وہ قائم رکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم زندہ ہے۔ مجھے بتائیے آپ کیسے ہیں، زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بھی زندہ ہے اور آپ بھی زندہ ہے، تو پھر شرک تو نہیں ہو گیا کہیں؟ لفظ داتا کے بولنے سے، لفظ غریب نواز کے بولنے سے، مشکل کشا کے بولنے سے شرک لازم آ جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو تو شرک لازم کیوں نہیں آتا؟ اللہ کریم کو قرآن میں کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، تو تم پھر یا تو اپنی موت کا اعلان کرو تاکہ شرک سے بچ جاؤ۔ حضرات محترم، اگر کوئی اپنے آپ کو مردہ کہے گا تو سننے والے کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے۔ سانس لے رہے ہو، آکسیجن لے رہے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہو، تم صبح شام کھانا کھاتے ہو، اپنے آپ کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اگر کہے کہ میں زندہ ہوں تو پھر خطرہ ہے کہ شرک ہو جائے گا۔ زندہ تو اللہ ہے، زندہ تو اللہ کریم کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر اب ہم نے آیت کو بھی ماننا ہے اور اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ کانفرنس جیسے صوفی محمد اکرم صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہم ریفریشر کورس کرواتے ہیں، وقت تقریر مقصود نہیں ہوتی کہ لوگ آئیں، آواز زیادہ سے زیادہ بلند کریں اور پھر گھر چلے جائیں۔ مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی ٹیوننگ ہو جائے، ان کو اپنے عقائد کی صحت کا پتہ چل جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ دین کے اصول کیا ہیں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس دور کے فتنوں کا طریقہ کار کیا ہے حملہ کرنے کا۔ حضرات محترم، اللہ بھی زندہ ہے، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا، اور آپ بھی
जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते, तो फिर फर्क क्या होगा? सुन लो लोगों, अल्लाह करीम जिंदा है तो वाजिबुल वजूद की हैसियत से, और हम जिंदा हैं तो मुमकिनुल वजूद की हैसियत से। वाजिब और मुमकिन कभी बराबर, जान के थोड़ा सा बोलेंगे तो फिर मैं आगे तक चलाऊंगा। वाजिब और मुमकिन कभी बराबर नहीं हो सकते। आप कहेंगे ये वाजिब और मुमकिन का चक्कर क्या है, इसकी भी तशरीह करते हैं कि वाजिब और मुमकिन का फलसफा क्या है। तो हज़रात ये बात भी बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। इस लाउड स्पीकर को किसने बनाया? मिस्त्री ने, कारीगर ने बनाया। कारीगर को किसने बनाया? अल्लाह ने। अब जहां जाके ये सवाल रुक जाए कि किसने बनाया, वो वाजिबुल वजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा, हमारे हक अहले सुन्नत। जहां जाके ये सवालात का तसलसल खत्म हो जाए कि उसको किसने बनाया है, वो वाजिबुल वजूद है। वो अल्लाह करीम वाजिबुल वजूद है, और सारी की सारी मखलूक मुमकिनुल वजूद है, और वाजिब और मुमकिन कभी बराबर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम की ज़ात भी कदीम है, सिफात भी कदीम है। इंसान ज़ात और सिफात में हादिस है, फानी है, और कदीम और हादिस कभी बराबर, कदीम और हादिस कभी बराबर नहीं हो सकते। हज़रात मोहतरम, आइए तीसरा फर्क ये है, अल्लाह करीम अपनी जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं है, और सारी दुनिया अपनी जिंदगी में अल्लाह करीम की मोहताज है। अल्लाह करीम की जिंदगी जाती है, और मखलूक की जिंदगी ये अल्लाह की अता फरमादा है। इसलिए मोहताज और गैर मोहताज बराबर नहीं हो सकते, और ज़ाती और अताई चीज ये दोनों बराबर। अल्लाह करीम अपनी जिंदगी में लामादूद है, और सारी की सारी मखलूक अपनी जिंदगी में महदूद है। महदूद और लामादूद कभी बराबर नहीं हो सकते। हज़रात मोहतरम, ये सारे के सारे फर्क मौजूद हैं। इसलिए लोगों याद रखो, अल्लाह करीम के जिंदा होने का मतलब और है, और मेरे और आपके जिंदा होने का मतलब और है। जब दाता के बारे में, मुश्किल कुशा के बारे में, और गरीब नवाज के बारे में इस्तिहाला लायक आ जाए, शुबा पैदा हो जाए, तो जो मीज़ानियां यहाँ रखा है वही मीज़ानियां वहां रखेंगे, बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो एक सवाल और भी है। सूरह बकरा के आखिर में, सूरह बकरा के आखिर में एक दुआ है, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, वाफ़ु अन्ना हमें माफ फरमा दे, वग़फ़िर लना हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अंता मौलाना तू मौलाना है। यहाँ तो लोग कहते हैं मौलाना कासिम नानोतवी, यहाँ तो लोग कहते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही, यहाँ तो लोग कहते हैं मौलाना अब्दुल शेखपुरी। तो शिरक क्यों नहीं होता? मेरे घर में तो तुझे शिरक नजर आ जाए, अपने घर में तुझे शिरक नजर क्यों नहीं आता? यहाँ का इनका तुझे नजर आ जाता है, वहां का शकीर नजर क्यों नहीं आता? मुश्किल कुशा का लफ्ज ये कुरान मुकद्दस में मौजूद नहीं है, किसी लफ्ज का तर्जुमा करके वहां तक पहुंचेंगे। गरीब नवाज का लफ्ज बेऐन ही ये कुरान मुकद्दस में मौजूद नहीं है, किसी लफ्ज का तर्जुमा करके वहां तक पहुंचेंगे। हज़रात मोहतरम, लेकिन मौलाना ये तो लफ्ज अपने पूरे हुजूले के साथ मौजूद है। तो फिर मैंने कहा हज़रत आप इसकी तरफ तवज्जो कर दीजिए, शिरक से बचना कैसे है? तो जवाब मिला कि हज़रत ये जब मौलाना मौलवी साहब के लिए बोला जाए तो मफ़हूम और है, जब अल्लाह के लिए बोला जाए तो मफ़हूम और है। मैंने कहा बस यही निज़ाम वहां भी रख ले,
जब हमारे ऊपर सब पैसे को कुफर लगाते हैं तो बात बहुत आसान हो जाएगी और नफरतें कम हो जाएंगी, मोहब्बतों को फरोग मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम में साथ फरमाता है आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो बज़ाते खुद कायम है और दूसरों को कायम रखने वाला है। अब ये उसकी मर्जी है कि शामल के साथ कायम रखता है, किस आबोताब के साथ कायम रखता है, किसी को जलील करके कायम रखे या किसी को इज्जत अता फरमा के कायम रखे, ये मेरे रब की मर्जी है। पूरी कायनात में जिसने सबसे ज्यादा इज्जतें पाई हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, और मेरे नबी की इज्जतें जाती नहीं है, अल्लाह करीम की अता फरमूदा है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम रखा है जैसे उसने चाहा। कल भी मेरे नबी जिंदा थे, आज भी मेरे नबी जिंदा हैं, और शान क़य्यूमियत का फैज़ पाकर मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल रेवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसीलिए तो कहते थे, तू जिंदा है तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कोई फैज लेकर कायम है और कोई फैज अता फरमा के कायम है, और ये अल्लाह करीम की शान क़य्यूमियत है। उसकी शान क़य्यूमियत से फैज पाकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी नवाजते थे अपनी उम्मत को, और आज भी नवाज रहे हैं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, फरमाया लोगों, जिसकी जिंदगी की ये शान है, जिसकी क़य्यूमियत की ये शान है, वो इतनी शान वाली हस्ती है कि उसे न ऊँघ आती है न नींद आती है। तेरा उस बादशाह के साथ ताल्लुक है, तू हर वक्त का उसका मक्ता है, जिसको न ऊँघ आती है न नींद आती है। तुम नमाज से पहले मांगो तो फिर भी वो सुन लेता है, नमाज के बाद मांगो तो फिर भी वो सुन लेता है। तुम बुलंद आवाज से पुकारो तो फिर भी वो सुनता है, तुम पस्त आवाज से पुकारो तो फिर भी सुनता है, तुम पंजाबी में अर्ज करो तो फिर भी वो सुनता है, तुम उर्दू में बोलते हो तो फिर भी वो सुनता है। जिस जुबान में तुम बोलोगे अल्लाह करीम को न ऊँघ आती है न नींद आती है, वो तेरी सब बातें सुनता है। एक ही तो बादशाह है जिसने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया। सवालियों की कसरत है, सारी मखलूक उसकी सवाली है। वो हज़रात मोहतरम, यहाँ से ये मसला भी हल हुआ कि जब उसका दरवाजा बंद ही नहीं होता, जब उसका टाइम टेबल ही नहीं है, तो फिर जिस वक्त भी उससे दुआ मांगो तो वो बोले ना, वो ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और लोगों, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, सारे का सारा उसके कब्जा में है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जब उसके अपने कब्जा में है तो फिर सूरह फातिहा जरा पढ़ ले। आप दुआ मांगते हैं, आप नमाज में दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। यौमे जज़ा का मालिक है अल्लाह करीम, यौमे जज़ा का मालिक है। और लोगों, मालिक किसे कहते हैं? मालिक की डेफिनेशन क्या है? मालिक की तारीफ क्या है?
कैफ शाअ। तर्जुमा करूंगा तो आपका सीना फट जाएगा। मालिक उसे कहते हैं जो अपने आयाने ममलूका में जैसे चाहे तसर्रुफ फरमाए, उसको कोई रोकने वाला ना हो। अब उसके आयाने ममलूका में अंबिया भी आते हैं, रसूल भी आते हैं, सिद्दीकीन भी आते हैं, शुहदा भी आते हैं, सालेहीन भी आते हैं, कुतुब भी आते हैं, अब्दाल भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं, हूरें भी आती हैं, गिलमान भी आते हैं। सारा जहान उसके आयाने ममलूका में आता है। अल्लाह करीम मालिक है और मालिक को इख्तियार है जिसको जो चाहे अता फरमाता है। अपने नबी को अगर इज्जतें दे दे तो किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, मालिक देने वाला। और मालिक की तारीफ ही ये है, अल मालिक हुवल मुतसर्रिफु फिल आयानिल ममलूकति कैफ शाअ। मालिक कहते ही उसे है जो अपने आयाने ममलूका में जैसे चाहे तसर्रुफ फरमाए। हज़रात मोहतरम फिर आगे इरशाद फरमाया शफाअत के लिए कौन है जो उसकी बारगाह में शफाअत कर सकता है। लेकिन लोगों एक ही सूरत है जिसको वो खुद इज़्ज़त अता फरमाए। इज़्ज़त के बगैर कोई नहीं बोल सकता। अब किसको अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाया, ये बात तो बहुत लंबी है, ये दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन पूछना चाहता हूँ उलमा से और गोंदल के कईयों सुन्नी मुसलमानों से, ये कौन सी मीटिंग थी जिसके अंदर अल्लाह करीम ने इजाजतनामे तकसीम फरमाए थे। ऐसा हो गया आपको या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए, जरा मुझे वो मौका तो बताएं कि जब अल्लाह करीम ने ये दस्तावेज तकसीम फरमाई। इसको भी इज़्ज़त है, इसको भी इज़्ज़त है, इसको भी इज़्ज़त है, इसको भी इज़्ज़त है। आपने सुना है ना कि हजरत उस्मान गनी की शफाअत से 70,000 बंदे बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। सुन रखा है ना। छोटा बच्चा जब फौत हो जाता है तो आप दुआ में भी उसके लिए कहते हैं कि या अल्लाह इसको मेरे लिए शाफे बना दे और मुशफ़्फ़ा बना दे। छोटा बच्चा शफाअत करेगा, आलिम शफाअत करेगा, अल्लाह के वली शफाअत करेंगे। ये दस्तावेज कब तकसीम हुई, कैसे तकसीम हुई, ये कौन सा मौका था, ये कहाँ मजलिस का इनेकाद हुआ जहाँ ये दस्तावेज़ात और संदेश तकसीम हुई कि फुला फुला शफाअत कर सकता है। हज़रत मोहतरम, ये अल्लाह करीम ने अपने नबी की जुबान से ऐलान फरमाया तो गोया नबी करीम का बोल देना ये खुदा का बोल देना है। जिसके लिए मेरे रसूल ने बोल दिया गोया कि उसको इतनी शफाअत मिली, वो इतने शफाअत पा गया कि जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान कर दिया। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस की शान ये है, फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया लोगों, मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जब तक वही की कुंडी नहीं हिलती उतनी देर तक मुस्तफा की जुबान नहीं हिलती। हज़रात मोहतरम, अब इज़्ज़त याफ्तान की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको अल्लाह करीम ने मालूम बनाया, जिसको इज़्ज़त अता फरमाया, जिसके इज़्ज़त के चर्चे सोहफ़े आदम में भी मौजूद हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे में भी मौजूद हैं, जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे में भी मौजूद हैं, तौरात के अंदर भी उसके जिक्र मौजूद हैं, इंजील के अंदर भी उसके तज़किरे मौजूद हैं और ज़बूर के अंदर भी उसके तज़किरे मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम, आइए उठाइए तारीख़ और सीरत की किताबें।
1000 साल पहले मेरे आका की विलादत से 1000 साल पहले की बात है। लिखा मेरे मुर्शिद गिरामी नब्बाज़ असर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये सीरत की वो इमाम याफ्ता किताब है जिसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी सदारती अवार्ड मिला है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी सदारती अवार्ड मिला है। उसके अंदर आपने तहरीर फरमाया 1000 साल पहले नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से यमन का बादशाह तुब्बा अपने घर से निकला। पहले वो मक्कातुल मुकर्रमा में आया, उसने आके काबतुल्लाह को गुलाब चढ़ाया। गुलाब चढ़ाने के बाद फिर वो चलते चलते जहां मदीना तैयबा का आज शहर है वहां पहुंचा। उस वक्त यहाँ पानी का एक चश्मा था जिसे यसरब कहा जाता था। लंबा सफर किया उसने, 400 उलमा वक्त के जय्यद मुमताज उलमा उसके साथ मौजूद थे। लेकिन जब इस यसरब के चश्मे के ऊपर पहुंचे उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बहुत सफर किया, वफादारी से सफर किया, प्यार से सफर किया, उल्फत से सफर किया, लेकिन इससे आगे जाने से हम माजूर हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। हमारी मादरत कबूल फरमा लें। हमने जो निशान देख लिए हैं, हमने जो निशानियां पा ली हैं, हम इससे आगे नहीं जा सकते। बादशाह ने अपने वजीर की ड्यूटी लगाई। उलमा तो बड़े वफादार हैं, बड़े दिखे हैं, धीरज हैं, दाना हैं, सियाने लोग हैं, इन्होंने अचानक ये जवाब क्यों दे दिया है? जरा इनसे पूछे तो सही बात क्या है। वजीर ने 400 उलमा को जमा किया। सुभान अल्लाह कहने का मौका है तो कह देना। 400 उलमा को जमा किया। अब हजरात मोहतरम उन उलमा से पूछा, इल्म फजल के मीनारों, तुम बड़े दी शऊर लोग हो, तुम अल्लाह की किताबों के आलिम हो, जरा ये तो बताओ, बादशाह सलामत पूछ रहे हैं कि तुमने जवाब क्यों दे दिया है? अब एक आलिम उठा, उसने कहा बादशाह को हमारी तरफ से ये पैगाम दे दीजिए, हम आपके साथ आए, पूरी कल्बी आमादगी के साथ चले थे, लेकिन जब इस मकाम पे पहुंचे हैं तो इस मकाम की निशानियां हमें बता रही हैं। एक वक्त आएगा पैगंबर आखिरुल ज़मान जिसके लिए अल्लाह करीम ने सारी कायनात बनाई है, ये जगह उस महबूब की हिजरतगाह बनेगी। निशानियां हमें बता रही हैं, यहाँ वो महबूब आएगा। हमने इरादा कर लिया है कि हम उसके आने तक उसका इंतजार करेंगे। एक आलिम उठा और उसने मेरे आका के चेहरे की बात की, सुभान अल्लाह। दूसरा उठा तो उसने जुल्फ के कुंडल की बात की। तीसरा उठा तो उसने सीने की वसअत की बात की। चौथा उठा तो उसने नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई और मनाक़िब बयान किए, किसी ने कोई और महामिद बयान किए। हज़रात मोहतरम, आप इसका खुलासा यूं समझे, कुरान कहता है पहली किताबों में मेरे नबी का इतना जिक्र मौजूद था। अहले किताब उलमा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, इतना जानते थे मोहम्मद मुस्तफा को जितना वालिदैन अपने बच्चों को जानते हैं। आप तकरीबन सारे साहिब औलाद हैं, तो बेटे का दूसरी तरफ भी हो तो पहचान लेते हैं आपका बेटा। आपको पता होता है कि बेटा उसके चेहरे की रंगत कैसी है, उसके खदोखाल कैसे हैं, उसके रुखसार कैसे हैं, उसके कानों की बनावट कैसी है, उसके चेहरे की बनावट कैसी है, उसके नाक की बनावट कैसी है। हमारा बेटा जब चलता है तो चलता कैसे है, और जब बोलता है तो बोलता कैसे है। हज़रात मोहतरम, कुरान कहता है उलमा इतना जानते थे, इतना जानते थे, इतना वालिदैन अपने बच्चों को जानते हैं, इतना रसूलुल्लाह को जानते थे। इतना तारुफ था उनके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
अब उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। अभी आपने बहुत लंबा जलसा किया, कितने उलमा ने खिताब किया? तीन चार उलमा ने खिताब किए ना, बाकी कुछ नाथ खान थे, तो कितनी देर लग गई? अब आप खुद अंदाजा फरमाएं कि वो जलसा कैसा होगा जिसमें 400 उलमा ने खुतबा दिया। कोई आके हुजूर के रुखे रोशन की बात कर रहा है। बाद वालों ने तो किस्सा माजी बना के बात की ना, तो वो मुस्तकबिल की रोशनी में बात कर रहे थे। बाद वाले तो कहते हैं वो कमाल हुस्न वजूद है, वो कमाल हुस्न वजूद है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि कुआं नहीं। और किसी ने कहा सोनी सूरत याद मेरे दी, ते उत्ते काली जुल्फ दा घेरा, जिथे पावे झात हुस्न दी, उत्थे होवे नूर सवेरा। हज़रात मोहतरम और गोदर वालों, वो कॉन्फ्रेंस कितनी अजीम कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 400 उलमा पानी बदल के आ रहे थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब बयान कर रहे थे, महामिद बयान कर रहे थे, मेरे नबी की रिफ़तों को बयान कर रहे थे, मेरे नबी की सफ़ों को बयान कर रहे थे, मेरे नबी की जमालियाती सरवतों को बयान कर रहे थे। जब उलमा ने अपना बात खत्म किया, वजीर भी मुतासर हुआ, बादशाह के पास जाके कहने लगा हजरत पहले तो उलमा ही यहाँ रहने के लिए बदल थे, अब तो मेरा भी प्रोग्राम बदल गया, अब तो मेरा भी प्रोग्राम बदल गया है। क्यों तुम बदले हो? तुम तो मेरे मोतमद हो, तुम तो मेरे वजीर हो, फिर तुमने क्यों प्रोग्राम बदल लिया? उसने कहा मैंने जो उलमा से सुना है, जिस वाले अंदाज में सुना है, इसका मतलब ये है कि उनका जब भी जिक्र हुआ है प्यार से ही हुआ है। उनका जिक्र जब भी छिड़ा है वालिहाना अंदाज में ही हुआ है, वालिहाना अंदाज में ही उनका जिक्र हुआ है। अल्लाह के मोहतरम वजीर साहब बता रहे हैं कितनी मोहब्बत से उलमा ने उस हस्ती का तारुफ करवाया है। अब मैं भी कहता हूँ मुझे भी यहीं पे रहने दें। अच्छा फिर इस तरह करो, मुझे भी बताओ वो हस्ती कौन सी है जिसके लिए उलमा ने अपना फैसला बदल दिया। यहाँ कोई शहर नहीं है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, सिर्फ जमीन के निशानात देखे, खजूरों के निशानात देखे, चश्मे को देख के यहाँ डेरा लगा रहे हैं, इतना पक्का तारुफ जो करवा रहे हैं। जरा मुझे भी बताओ वो हस्ती कैसी है। अब वजीर बैठा है और बादशाह बैठा है और वालिहाना अंदाज में वजीर ने हुजूर के बना के बयान करना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो इतनी दिलचस्पी से बयान कर रहा था, इतनी मोहब्बत से बयान कर रहा था, जैसे जैसे बयान करने लगा बादशाह की आंखें भी नम हो गई, लग गई चोट मोहब्बत वाली, इश्क में से रही खबर न खाई।
के मसाइल हैं, किस्मत के मसाइल हैं, उम्र सल्तनत को निभाना है, ड्यूटियां हैं। लेकिन चलो थोड़ा सा इसमें हम अपना प्रोग्राम शामिल करते हैं। कहा जिन उलमा ने मेरे साथ इतनी वफादारी की है और आज तक उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा, आज वो इतने इस मौके पे जब वो इनकार कर रहे हैं तो उनका इनकार बामाना है, बामकसद है, इसलिए मैं उनकी तकरीम करता हूँ। उसने कहा मैं इनके लिए मकानात तामीर करूँगा। जब तक मकानात तामीर नहीं होते मैं भी यही रहूँगा। हज़रात मोहतरम, और कहा सिर्फ मकानात नहीं, लोनियाँ खरीदी जाएँ। 400 लोनियाँ खरीदी गई और हर आलिम के साथ एक लोनी की शादी की गई और फिर उनको खर्चे के तौर पर उनकी मईशत को सहारा देने के लिए ज़रे कसीर दिया गया ताकि ये अपाहज ना हो जाए, मुआशी तौर पर मफलूज ना हो जाए, मुआशी तौर पर कमजोर ना हो जाए, ज़रे कसीर भी दिया। हज़रात मोहतरम मकानात बन रहे हैं बादशाह की निगरानी में। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हर अमल के पीछे कोई ना कोई गरज होती है। आप मस्जिद बना रहे हैं तो बातें होती हैं, यहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो मकानात बन रहे थे तो बातें किसकी होती होंगी? मकानात बन रहे हैं, 400 मकानात। दम ददन की बात नहीं और लोगों 1 2 दिन 4 दिन की बात नहीं, 400 मकानात की तामीर जारी है। आज का साइंस का दौर भी नहीं, पत्थर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो शहर ऐसा तामीर किया जा रहा है जिसका हर पत्थर अपने पसे मंजर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखता है। जहां काम होता है, मजदूरी करने वाले मजदूरी कर रहे हैं और मिस्त्री का काम करने वाले मिस्त्रीपन का काम कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो सब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहे हैं। वो तमहीद कैसे बांट दी गई, अब ये तसल्सल कैसे जारी है। गोया यहाँ मकानात नहीं बन रहे थे, यहाँ रोजाना महफिल मिलाद सकती थी। वही तसल्सल तो आज कायम है, सिर्फ फर्क माजी और मुस्तकबिल का है। हम कहते हैं सहारो खबर ये सुनाओ, यहाँ तो आए उलमाए किराम और नात खान आए ना पढ़ने के लिए, बयान करने के लिए, तो हो सकता है किसी की गरज में ये शामिल हो कि पेट्रोल मिलेगा, फीस मिलेगी, नजराना मिलेगा। हो सकता है किसी की नीयत में ये चीज शामिल हो, लेकिन वो किस नीयत से कर रहे थे? वो जो मकानात बन रहे थे वो इस नीयत से बन रहे थे, ये मकानात बनेंगे, हम यहाँ डेरा लगाएंगे और अपनी आंखों की पुतलियों को उनके रास्ते में रोजाना बिठा दिया करेंगे, उनका इंतजार किया करेंगे। 400 मकानात बन गए, एक मकान डबल मंजिल बनाया गया, कहा ये महबूब के लिए है। एक मकान महबूब के लिए बनाया, अपने मखलूक के लिए बनाया, अपनी जान के लिए बनाया, जिसे कुरान भी कहता है फरमाया नाम रोका, ऐ जाने जहां मुझे तेरी जान की कसम। कितनी जाने कायनात में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने किसी जान की कसम नहीं उठाई। एक जान मोहम्मद मुस्तफा की जान है, जिसके
साहब की नजर इसी पे पड़ गई थी। फरमाते सूरत नू में जाना खा के जाने जाना खा सच्चे आखा के रब्बी शान आखा जिस शान कुशाना सब बनिया। अल्लाह दे मोहतरम जब मकानात बन गए, अब बादशाह ने आगे सफर करना था, उलमा को जमा किया, कहा उलमाए किराम जाने को जी तो नहीं जाता, लेकिन मजबूरियां मुझे खींच रही है, अगर मुमकिन होता तो मैं भी उस महबूब का इंतजार करता। एक खत लिखा उस बादशाह ने, एक खत लिखा उस बादशाह ने, और जो उनमें से सबसे बड़ा आलिम था उसके हवाले किया। उस खत की इबारत वैसे तो तवील है, इतने असाकिर के हवाले से हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने वो पूरी इबारत लिखी है। मैं एक थोड़ा सा इक़्तिबास आपको सुना देता हूँ। तो बादशाह यमन ने लिखा, अम्मा बात, अम्मा का माना होता है जहां तक बात का ताल्लुक है, अम्मा का माना होता है जहां तक बात का ताल्लुक है। अम्मा बात या ये मैं नहीं कह रहा जिसकी जेब में पैसे डाले गए हैं, ये वो कह रहा है जिसने 400 मकानात बनवाए हैं। जरा उसके सीने में झांक के इसकी लताफत महसूस करें, उसके सीने में झांके और लताफत महसूस करें कि वो कैसे कह रहा है। या मोहम्मद, क्या मानना है उसका? ए सरापा खूबी और ज़ेबाई, हर एंगल से खूबसूरत नजर आने वाले, हर जाविये से खूबसूरत नजर आने वाले, जिसका कमाल भी खूबसूरत है, जमाल भी खूबसूरत है और नवाज भी खूबसूरत है। या मोहम्मद इन्नी आमन्तु बिका व बिकिताबिकल्लज़ी युनज़्ज़िलुहुल्लाहु अलैक। ऐसा फातिमा खूबी मेरे महबूब, मैं आपके ऊपर आज ही ईमान लाने का ऐलान कर रहा हूँ, और उस किताब के ऊपर भी ईमान लाता हूँ जो अल्लाह करीम तुम्हारे ऊपर नाज़िल फरमाएगा। अभी वो किताब आई नहीं, लेकिन ईमान लाने वाले पहले ईमान ला रहे हैं। आना ला दीने, ओ मेरे महबूब मैं तुम्हारे दीन के ऊपर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना ला दीने वाला सुन्नतिक, ओ मेरे महबूब मैं तुम्हारे दीन के ऊपर हूँ, मैं तुम्हारी सुन्नत के ऊपर हूँ। आमन्तु बिरब्बिका, मैं उस रब के ऊपर ईमान लाता हूँ जो तुम्हारा रब है। कुरान ने कहा फला व रब्बिका, मुझे मेरी कसम कि मैं तेरा रब हूँ। फला व रब्बिका, मुझे तेरे रब होने की कसम। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी कसम कि मैं तेरा हूँ। हज़रत तुबा कहते हैं आमन्तु बिरब्बिका, मैं आपके रब के ऊपर ईमान लाता हूँ, व रब्बि कुल्ली शै, और हर चीज के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ। इन अदरकतो फबिहा व निअमत, अगर मैंने आपका ज़माना पा लिया, अगर आप मेरे होते हुए दुनिया में होते हुए आ गए, तो फिर तो मेरी खुशबख्ती हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ज़ियारत करूं। अगर तुम आ गए, अगर मैंने आपको पा लिया, फबिहा व निअमत, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। व इन लम मुदरिका, अगर मेरी और आपकी मुलाकात हो सके तो फिर एक काम करना, फस्फाउली फस्फाली यौमल क़ियामा। मेरे महबूब, मैंने सुना है
किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। जब आदम अलैहिस्सलाम भी परेशान होंगे, जनाब नूह भी परेशान होंगे, जनाब इब्राहीम का पसीना भी निकल रहा होगा, जनाब मूसा और ईसा भी नहीं बोलेंगे। मैंने सुना है कि उस वक्त आप शफाअत फरमाएंगे, मेहरबानी फरमाना उस वक्त इस गरीब को अपनी शफाअत में याद रखना। सुनते हैं कि माशर में, सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, तो फिर अपनी तो बनवाई है, गर उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह। यहाँ से आपने अंदाजा तो कर लिया होगा कि उलमा ने तारुफ कितना जामे करवाया, कितना जामे तारुफ करवाया उन उलमा ने बादशाह के सामने। उसने खत लिखा और जो सबसे बड़ा आलिम था उसके हवाले किया, कहा कि अगर तेरी जिंदगी में आ जाए तो पेश करना, और अगर तेरी जिंदगी में ना आए तो अपनी औलाद को आगे बढ़ाना, और अगर उसकी जिंदगी में भी ना आए तो फिर ये मीरास आगे मुंतकिल कर देना। यहाँ तक के वो हस्ती तशरीफ ले आए, हज़रात मोहतरम 1000 साल गुजरने के बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। फिर वक्त आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई और मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। इधर आपके इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार मक्का में इस तरह लोगों ने प्यार नहीं किया, मदीने में लोगों ने प्यार बहुत किया। इसकी वजह क्या है? असल में मक्का शहर जो था ना, उसकी बुनियाद ही मोहब्बत रसूल, मदीना शहर की बुनियाद ही मोहब्बत रसूल पे रखी है। शहर मक्का की बुनियाद भी मोहब्बत रसूल, मोहब्बत इलाही पे रखी गई है, लेकिन यहाँ एक इज्तिमाई तौर पे शहर की बुनियाद रखी है और मोहब्बत रसूल के ऊपर रखी गई है। आजकल तो मोबाइल आ गया है और इस जालिम ने इंसान को इंसान से छीन दिया, औलाद से बाप को छीन दिया और बाप से औलाद को छीन दिया। करीब बैठा दोस्त अपने दोस्त के लिए इंतजार में होता है, कभी तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ भी कि नहीं, इल्तिफात फरमाएंगे कि नहीं। हजरत बैठे यहाँ हैं और मोबाइल के ऊपर कहीं उसी दुनिया में फिर रहे हैं। मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया। हजरात, ये उस दौर की बात है जब रात को नानियां दादियां किससे सुनाया करती थी। तो रात को जब नानियां दादियां बैठती थी तो फिर वो बातें करती थी। तो जाहिर है मदीने वालों को जो सबसे बड़ा विरसा मिला था वो दास्तान मुस्तफ़ा का विरसा मिला। इसलिए नानियां दादियां बातें ही यही करती थी कि उसका जमाल ऐसा होगा, उसका कमाल ऐसा होगा, उसकी रिफत ये होगी, उसकी बरकत ये होगी, उसके दुआबे दहन में भी इतनी बरकत होगी, उसके कदमों से लगने वाली मिट्टी में भी इतनी बरकत होगी। हजरात, क्या वो सुहाना मंजर था, सुभान अल्लाह। और ये बात मैं फकत जज्बात की रोक में नहीं कह रहा, आप उन बच्चियों की बात देख लें। जब सरकार तशरीफ लाए तो उन्होंने किन दफ्तरों से इस्तेमाल किया।
ان لفظوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ میری تائید فرمائیں گے، تصدیق فرمائیں گے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کہتی ہیں طلع البدر علینا، ہمارے اوپر تو چودھویں کا چاند دور ہو گیا۔ بھئی پہلے دن ایک بچی کی اتنی اپروچ فکر کی، علم کی، نالج کی، فکر کی، سوچ کی، اتنی اپروچ، اتنی بلندی کہ شخصیت کو دیکھتے ہی کہہ رہی ہے ہمارے اوپر چودھویں کا چاند دور ہوا۔ یہ بات تو وہ ہے جو قرآن نے ایک عرصے کے بعد کہی تھی، حضور کی ولادت کے ایک عرصے کے بعد قرآن نے کہی تھی طٰہٰ اے چودھویں کے چاند۔ تو وہ شعور جو قرآن پاک میں موجود تھا، ابھی بچیوں نے قرآن پڑھا نہیں تو پہلے کہہ رہی ہے چودھویں کا چاند آ گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی پہاڑیوں سے ہمارے اوپر چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر شکر واجب ہے، علینا ہمارے اوپر۔ یہ کس برادری کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خون کے رشتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان کے رشتوں کی بات ہو رہی۔ یہاں ایک خوشخبری دوں آپ کو۔ خوشخبری یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، شیخ عبدالعزیز دباغ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکل کر سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کنیکشن ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر خون کے رشتوں کو توڑنا جرم ہے تو ایمان کے رشتوں کو توڑنا بھی جرم ہے۔ اگر ان رشتوں کا احترام کرتے ہو تو اس رشتے کا بھی احترام کرو، آپس میں ایک دوسرے سے لڑو نہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا کرو اور اس بات پہ ناز کیا کرو میں لگ پالا دلڑ لگیاں میرے تو پڑے رہنے میری آسان امیداں نے صدا دے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے تھے، ابھی راستے میں آپ نے قیام فرمایا بنو سلیم کے قبیلے میں یا بنو سلیف کے قبیلے میں دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، تو فیصلہ یہ کیا گیا تبا کا خط میرے پاس موجود ہے یا ہمارے پاس موجود ہے، آپ کی خدمت میں وہ خط پیش کیا جائے۔ بندے کا انتخاب ہوا، کس کا نام لیا گیا؟ جناب حضرت ابو لیلہ کا۔ ابو لیلہ تم جاؤ اور جا کے یہ خط آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضرت ابو لیلہ نے خط لیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے ہی میرے آقا کی خدمت میں پہنچے، اس سے پہلے ملاقات نہیں تھی، لیکن میرے آقا نے جاتے ہی پوچھ لیا او آنے والے آنتا ابو لیلہ تو ابو لیلہ ہو؟ ابو لیلہ ہو، تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ ہاتھ ان کتاب تو خط لائے ہو نا، میرے دوست کا خط لائے ہو، میرے پیار کرنے والے کا خط لائے ہو، ہاتھ ان کتاب ابو لیلہ وہ خط میرے حوالے کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کیا گیا۔ فرمایا صدیق ذرا پڑھ کے سنو۔ کتنا اعتماد ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کے اوپر، ہر مقام پہ اتنا اعتماد ہے۔ آج
پتہ نہیں بعض صحابیوں کا اعتماد صدیق سے کیوں اٹھ گیا. میرے رسول کو تو صدیق کے اوپر ہر دور میں اعتماد رہا. یہاں عقیدے کا اظہار کر دوں. جنوں پنج تن نال یار نہیں, جنوں پنج تن نال یار نہیں, اونے کلمے دا اقرار نہیں, جنا تھو یاراں دا یار نہیں, او بھی جنت دا حقدار نہیں. بلکہ اس طرح کہہ لو, ایسے کہہ لیتے جنوں سب یاراں نال پیار نہیں, او بھی جنت دا حقدار نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور صحابیات بھی ہر صحابی نبی نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں, لاکھ لمحے سجدے کر بھاویں, جے آل نبی دا منکر ہیں, جے اصحاب نبی دا منکر ہیں, تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. فرمایا صدیق ذرا خط پڑھ کے سناؤ. حضرت صدیق خط پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ کریم پیار سے سن رہے تھے. 1000 سال پہلے کا وہ خط چلا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں. جب خط مکمل ہوا اس کے آخری الفاظ تھے فَشْفَعْلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے میرے محبوب اور شان والے محبوب, مہربانی فرمانا جب آپ شفاعت فرمائیں گے مجھے اپنی شفاعت میں یاد رکھنا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مرحباً بِأَخِي الصَّالِحِ, مرحباً بِأَخِي الصَّالِحِ, مرحباً بِأَخِي الصَّالِحِ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے ہیں او میرے بھائی, تیرا ایمان بھی قبول ہے, اسلام بھی قبول ہے, تیری درخواست شفاعت کے لیے بھی قبول ہے. مرحبا کا مطلب یہ ہے. وہ حضرات اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکتے. میں کتنی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. میدان محشر ہے, سورج سبا نیزے پہ ہے, لوگ پسینے سے شرابور ہیں, ناقابل برداشت گرمی ہے. اللہ کریم پوری جلالت میں ہے, لوگ تاب نہیں جا رہے ہیں. پھر توفیقات الہی سے ان کے ذہن میں بات آئی آج کوئی شفیع ڈھونڈا جائے, آج کوئی شفیع ڈھونڈا جائے, کوئی سفارش کرنے والا ڈھونڈا جائے. اب ذہن میں ڈالنے والے نے بات کیسے ڈالی اس کی قدرت دیکھیں.
लोग गए आदम अलैहिस्सलाम के पास, अंता अबुल बशर खलक़कल्लाहु बियदिही, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। वनफ़ख़ फ़ीहा फ़ीका मिन रूहिही, और उसने अपनी रूह तुम्हारे अंदर फेंकी है, फूंकी है, रूह फूंकी है तुम्हारे अंदर। और वअस्कनका फ़िल जन्नह, और आपको जन्नत में सुकून भी अता फरमाई। तो आप मेहरबानी फरमाएं, देखें अल्लाह तरा फीमा नहनु, क्या आप देख नहीं रहे किस मुसीबत में पड़े हैं हम, किस बला में हम पड़े हैं। आप हमारे बाप हैं, शफ़क़त पितरी का तकाज़ा है कि आप हमारी शफ़ाअत फरमाएं। फरमाया ओ लोगों, आज मैं भी नहीं बोल सकता, जाओ आज किसी और के पास चले जाओ। एक हदीस पाक में यूं है, आप फरमाएंगे इज़हबू इला जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी दस्तगीरी फरमाए। शायद जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, आके कहा अंता अव्वलुर रसूल, आप पहले रसूल हैं, आपके ऊपर अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, आपको अल्लाह करीम ने अपना अपने शकूर करार दे दिया। मेहरबानी फरमाए, देखें कितनी गर्मी है, हम किस मुसीबत में पड़े हैं, मेहरबानी फरमाकर हमारी शफाअत फरमा दें। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, आज तो बहुत ही गजब में है मेरा घर, जाओ आज किसी और के पास। लोग आए और एक रिवायत में है इज़हाबू इला इब्राहीम खलीलिल्लाह, इब्राहीम खलील के पास जाओ। जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आए, उन्होंने भी कहा इज़हाबू इला गैरी, आज किसी और के पास चले जाओ। लोग जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आके उनकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, आप कलीमुल्लाह हैं, आपके ऊपर अल्लाह ने बड़ी इनायत फरमाई, आपको अल्लाह करीम ने साहिबुल असा बनाया है, आप मेहरबानी फरमाएं हमारी शफाअत फरमा दें। आप भी फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, आज किसी और के पास चले जाओ। लोग जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आगे कहेंगे अंता कलिमतुल्लाह, आप तो कलिमतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है, अल्लाह करीम ने आपको बगैर बाप के पैदा किया है, मेहरबानी फरमाए हमारी शफाअत फरमाए। आप फरमाएंगे मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हस्ती बताता हूँ, जब उनके पास जाओगे काम हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं लोग मेरे पास आएंगे, अभी आके बोलेंगे नहीं, मैं उनके बोलने से पहले कहूंगा और ठोकरें खाने वालों, तुम मेरे पास आ गए हो, आना लहा, जिस मकसद के लिए तुम आए हो मैं उसके लिए मौजूद हूँ। कमाल है, पहले मिन्नतें की, समाजतें की, अर्ज़ें की, गुज़ारिशात पेश की कि मेहरबानी फरमाए, लेकिन वहां पे हाथ न पकड़ा गया और यहाँ बोले ही नहीं तो करीम ने पहले ही दरवाजा खोल दिया। फरमाया लोग मेरे पास आए कि मैं क्या करूँगा, फरमाया मैं सर सजदे में, मैं सर सजदे में रखूंगा। हज़रात मोहतरम, अब इससे पहले कि एक और बात भी सुन लें। एक मौका आया, हज़रत अमर इब्न आस फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने कुरान मुक़द्दस की दो आयतें पढ़ी। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा है जो कुरान में मौजूद है, रब्बे इन्नहुन्ना अज़ल्लना कसीरम मिनन नास वमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। मेरे रब, इन बुतों ने लोगों को बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ जिन्होंने मेरी ताबियादारी की तो उनका मेरे साथ ताल्लुक है, और जिन्होंने मेरी नाफरमानी की तू माफ फरमाए तो मैं कौन हूँ कि बोल सकूँ, लेकिन उनका मेरे साथ ताल्लुक नहीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मक़ूला जो कुरान पाक में मौजूद है, ये भी पढ़ा,
इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू अज़ाब देना चाहे तो तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू माफ़ करना चाहे तो तू गालिब है, हिकमत वाला है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह, ये जुमला पढ़ने के बाद हज़रत अमर इब्न आस कहते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए हैं, अर्ज़ की अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अर्ज़ करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों का सैलाब बहने लगा। और वो कौन है जो मेरे और आपके लिए रो रहा था, मेरी और आपकी निजात के लिए रो रहा था, मेरी और आपकी कामयाबी के लिए रो रहा था, मेरी और आपके अच्छे अंजाम के लिए रो रहा था। जब मेरे आका को हमारे अंजाम की इतनी फिक्र है, तू अपने अंजाम को क्यों भूल गया है? बास लोग कहते हैं कि हदीस शफाअत से बंदा जरी हो जाता है, बयान ना की जाती। बास उलमा ने इसके ऊपर ये लिखा कि बंदा जरी हो जाता है ज्यादा शफाअत की हदीसें बयान करने से। लोग आदि मुजरिम हो जाते हैं और रहमत के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और फिर वो तजावुज़ात में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ बात ऐसी नहीं है। जिसके पास एहसास है, जिसके पास एहसास है, वो जरी नहीं होता। वो कहता नहीं, इसका मतलब ये है वो रोए ना, तो अगर मैं दोज़ख में जाऊं तो उनको तकलीफ होती है ना, मैं गुनाह करूं तो उनको तकलीफ होती है ना, तो मैं गुनाह नहीं करूंगा। साहबा ने पूछा नहीं या रसूल अल्लाह, विसाल के बाद मामला कैसा होगा? फरमाया फमा राइतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह, जब मैं तुम्हारी कोई अच्छाई देखूंगा ना, मैं अपने मज़ार में भी तुम्हारे लिए अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। हमारी तो इस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम, जब मैं तुम्हारी कोई बुराई देखूंगा तो मैं अपनी कब्र में, मज़ार में, अपनी मरकत में भी तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करूंगा। सोचने की बात है, माँ को अपने बेटे से बहुत प्यार होता है। माँ जब खुशी कर रही हो तो उसके जज्बात को देख के बेटे को ये कहना चाहिए, काश कि मेरी माँ इसी तरह रोजाना मेरी कामयाबियों पे खुशी होती रहे। और बेटा फेल हो जाए, उसको चोट लग जाए, बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, बेटे को तकलीफ पहुंचे तो माँ को तकलीफ पहुंचती है, तो उससे जुर्म हो जाए तो कहती है मेरे दिल को तकलीफ हुई है, मालिक तू माफ कर देना, मेरा बच्चा तू माफ कर दे। इससे पहले माँ को तकलीफ होती है, फिर ये कलिमात निकलते हैं। जो जिम्मेदार उम्मती है उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस्तिग़फ़ार के कलमे मुस्तफ़ा की जुबान से वैसे नहीं निकलते, पहले कल्बे मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है। बचो गुनाहों से, बचो गलतियों से, अपने आप को बचाओ और ऐसा काम करने की कोशिश करो जिससे मुस्तफ़ा का दिल राज़ी हो। अल्लाह के मोहतरम, माँ की मोहब्बत तो मैंने मिसाल के तौर पे बयान की है, वगरना कहाँ लाखों माँओं की मोहब्बत एक तरफ और मुस्तफ़ा का प्यार एक तरफ। हज़रत अमर इब्न आस फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ कर रहे थे, इतने में अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील हुक्म, फरमाया जाओ जाके मेरे महबूब से कह दो। साथ ये जुमला है, रब्बुका आलम, तेरा रब सारी सूरतें जानता तो है, लेकिन फिर भी जिब्रील मेरे यार से जाके पूछो क्यों रो रहा। रब्बुका आलम के कलिमात मौजूद हैं कि हालांकि आपका रब बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी मेरे फरिश्ते जिब्रील जाओ मेरे महबूब से पूछो क्यों रो रहा है। और मेरे महबूब तुझे उम्मत का गम सता रहा है। इन्ना
शादी करेंगे। तो हजरत मेरे आका फरमाते हैं, मैं खत्म करूं, बहुत देर हो गई। फरमाया कि मैं सर सजदे में रखूंगा, और फिर तवज्जो है आपकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं सर सजदे में रखूंगा और अल्लाह की ऐसी हमद बयान करूंगा जैसी किसी ने उस वक़्त तक तारीफ नहीं की होगी। नहीं, आपने राशि नहीं निचोड़ी। रात गए जलसे में तकरीर के लिए मौका देते हैं, फिर कहते हैं समझ नहीं आई। जागते जागते तकरीर करवाया करो, जागने के वक्त में तकरीर करवाया करो ताकि किसी के भेजे में उतरे। हज़रात मोहतरम, अब मुझे बताएं कि तारीफ किस किस ने की, किस किस लहजे में की, किस किस ने तारीफ की, किस किस लहजे में की, किस किस जुबान में की, किस किस अंदाज में की। अब जरा मखलूक को गिने, पहले देखें कीड़े कितने हैं, सारे तारीफ करने वाले। मकोड़े कितने हैं, सारे तारीफ करने वाले। जर्दे कितने हैं, सारे तारीफ करने वाले। पत्ते कितने हैं, सारे तारीफ करने वाले। दरख्त कितने हैं, सारे तारीफ करने वाले। पहाड़ कितने हैं, सारे तारीफ करने वाले। मादनियात कितनी हैं, सारी तारीफ करने वाले। और ये तो छोटी छोटी मखलूक के ऊपर जाए तो अंबिया कितनी कितनी शान वाले और तारीफ वाले, रसूल कितने और शान वाले और तारीफ वाले, अल्लाह की हिम्मत बयान करने वाले। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह के मोहतरम, अब ज़र्रे से लेकर आफताब तक मेरे आका फरमाते हैं कि मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि इससे पहले किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की होगी। इसका मतलब ये है मेरे नबी का इल्म इतना जामे है। यही वो इल्म है, इल्म लदुनी जिसको कहते हैं, और यही वो गैब है, इल्म गैब सुन्नी जिसको कहते हैं। अब इसके ऊपर बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बात मुकम्मल भी तो करनी है। मैं सर सजदे में रखूंगा, सुभान अल्लाह। वो पहला सजदा भी कमाल का, और ये उम्मत के लिए आखिरी सजदा भी कमाल का। पहला सजदा भी तेरे लिए और आखिरी सजदा भी तेरे लिए। तू भी कभी अपने रब को राजी करने के लिए, रसूल की रजा के लिए तुम भी सजदे किया करो। सजदा करम है, सजदा इनायत है, सजदा अल्लाह की मेहरबानी है। बड़ा खुशनसीब बंदा है जिसको सजदा करने की सादत है। सब सजदे में रखूंगा, तारीफ करूंगा अल्लाह की, तो अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद। या मोहम्मद वैसे नहीं है जैसे मैं और आप एक दूसरे का नाम लेते हैं। या मोहम्मद का माना है ए सरापा खूबी और ज़ेबाई। और मोहम्मद की तारीफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछी जाए तो कहा गया कि जनाब ये नाम बाबा और इलाज में किसी का नहीं था, तो कैसा लगा कि आपने ये नाम कहा। चाहता हूँ फर्श पे मखलूक तारीफ करे इसकी, अर्श पे खालिक इसकी तारीफ करे। तो फिर ये कहना होगा या मोहम्मद का माना है ए ममदूह फर्शो वरश, ए ममदूह फर्शो वरश इरफा रासा। सोनियो सिर जाओ, महबूब जरा सर अहमद को उठाइए। इरफा रासा
सलतोता वशफा तो शफा, मेरे महबूब सवाल करना तेरा काम है, इनायात के दरवाजे खोल देना मेरा काम है। सब मुतलक है, ये नहीं फरमाया महबूब इतने दायरे में मांग लेना, इससे आगे मत मांगना। फरमाया जा रहा है सलतोता, जो भी मांगोगे तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। वशफा को शफा, महबूब शफात करो, तुम्हारी शफात को कबूल किया जाएगा। फिर जितने लोग परेशान हाल थे ना, सबकी फिर आप शफात फरमाएंगे। इसमें अंबियाए किराम की ज़बात कुर्सिया तो अव्वल दर्जे के लोग हैं ना, वो तो बहुत बुलंद मर्तबा लोग हैं। वो जब नहीं बोल रहे थे तो असल में हया की वजह से नहीं बोल रहे थे, और साथ वो मशीयत इज़्ज़ती को भी जानते थे कि आज ये मनसब है कैसे, बस पर्दा भी रखना चाहते थे और मशीयत इज़्ज़ती के अमीन भी थे, इसलिए कहा कि जाओ आज किसी और के पास जाओ। अल्लाह की मशीयत को जानते थे, मगर ये भी तो हो सकता था जैसे मखलूक के ज़हन में आता तो फौरन हुजूर की खिदमत में आते, फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाते। तो इस तरह नहीं हुआ ना, हज़रत आदम से शुरू करवाया, दरवाजे खटखटाओ, दस्तक दो एक एक दरवाजे के लगा दिया सारे। इमामे क्या नाम है, इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ कमाल का नुक्ता लिखा, फरमाते मकाम शफ़ाअत क्या है, वल इशारिही तआला बिअन्न नास यहमलून बिक़यामिही फ़ीही वमा ज़ाका इल्ला मकाम शफ़ाअत। फरमाते हैं लोगों, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे तो फिर जितने लोग हैं माशर में, जितने लोग हैं सारे मिलके, जिनमें काफिर भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, अपने भी होंगे, बेगाने भी होंगे, सारे नबियों की उम्मतें भी होंगी, नबी खुद भी होंगे, सारे मिलके मैदाने माशर में आमिना के लाल की तारीफ करेंगे। फकत इतना सबब है इनेकादे बर्ने माशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बर्ने माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो मजमा लगा ही इसलिए था। अब आप मुझे बताएं, अब इसके बाद जिन्होंने दोज़ख में जाना होगा, ये तो हिसाब किताब शुरू करने के लिए शफ़ाअत है ना, इससे अगले मरहले में फिर बहुत सारी शफ़ाअत है, बहुत सारी शफ़ाअतें हैं, वो लंबा चैप्टर है। लेकिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, एक दफ़ा तो सारे जन्नती भी ममनून हुए कि नहीं, तो जन्नत में जाके भी मोहसिन को तो नहीं भूल सकते ना। आज तो वो पुराने बाबे चले गए, सूफी अकरम भी कल पूरा होने वाला है, इसका हाफसा भी जवाब दे जाएगा। ओ फलाने मौके पे केड़ा मौजूद बुलाया सी, भूल जाते हैं ना। लेकिन जन्नत में जाएंगे तो सारे बूढ़े होंगे, जवान होंगे, हाफजे ताज़ा होंगे, निसियान का मरस नहीं होगा, किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। तो उस शबाब से पहले जिक्र मुस्तफ़ा का शबाब दिखा, उस शबाब से पहले जिक्र मुस्तफ़ा का शबाब दिखा दिया, ताकि जन्नत में दूध पीते हुए भी तो मुस्तफ़ा को याद करता रहे, और शहद पीते हुए भी तो मुस्तफ़ा को याद करता रहे। और जब अल्लाह के जमाले मुतलक के ऊपर तेरी नज़र हो और तो उसको देख रहा हो, तो फिर उसकी ज़ियारत करके फिर आमिना के लाल की तरफ मुँह करके कहे शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा मेहरबाना सुल्ताना रज़ी
भला होई। पुरकार घूम के अपने असली मरकज पे आ चुकी है, दायरा मुकम्मल हुआ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। اللہ تعالیٰ کا سایہ تادری ہماری سروں پہ دائم و دائم فرمائے۔ آج انشاءاللہ دوسری نشست جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل انشاءاللہ العزیز تیسری اور آخری نشست ہوگی، اور تیسری اور آخری نشست میں خصوصی خطاب کے لیے مناظر اسلام فخر اہل سنت خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی عبدالکریم نقشبندی صاحب، وہ انشاءاللہ کل خصوصی خطاب ان کا ہوگا۔ اسی طرح محبت سے جیسے آج تشریف لائے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کے پوری محبت سے پورے شوق سے تشریف لائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور حافظ محمد مشتاق صاحب جو اس ٹیم کا ایک حصہ ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑے ادب سے استاد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعا فرمائے۔ یا اللہ جو تلاوت ہوئی، جو نعتخوانی ہوئی، جو مواعظ پیش کیے گئے، جو تبرک تیار کیا گیا، جو سلام پڑھا گیا، میرے مالک یہ ساری چیزیں انتہائی ادب عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول منظور، یا اللہ ان ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں بازیابی عطا فرمانے کے بعد ان کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آپ کے شایان نشان عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی صاحبزادیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابوین کریمین سیدین طیبین طاہرین تمام سلاسل تصوف سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سربندیہ کے تمام مشائخ کو یا اللہ درجہ بدرجہ اس کا سبب عطا فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ امت مرحومہ کو اس کا سبب عطا فرما۔ بالخصوص اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے اور اس کا آغاز کرنے والے وہ لوگ جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، میرے مالک عشق رسول کی محبت رسول کی خوشبوؤں کو جنت کی نعمتوں سے بدل کے ان کو عطا فرما۔ میرے مالک ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، قبر کو آج خوشبوؤں سے بھر دے، جنت کی نعمتوں سے بھر دے، جنہوں نے یہ دسترخوان بچھایا ہے میرے مالک جو موجود ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرما، اور جتنے یہ دوست عزیز آئے ہیں میرے مالک یہ میرے لیے کسی عالم کے لیے نہیں آئے، محبت رسول کی زنجیر کھینچ کے لائی ہے میرے مالک ان سب کے سینوں کو اس طرح ہمیشہ اپنے نبی کی محبت سے آباد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل نصیب، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی، جو مقروض ہیں ان کو رستگاری نصیب فرما، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو عزت والا گھر نصیب فرما۔ میرے مالک میرے وطن کی ہے، میرے ملک کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تو جانتا ہے کون اس کے لیے مخلص ہے کون اس کا دشمن ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا، میرے مالک کرم فرما، اور جو تیری بارگاہ میں مخلص لوگ ہیں وہ عطا فرما۔ ہمارے فیصلے ضائع نہ ہوئے، مالک تو بہتر جانتا ہے، ہمیں صالح قیادت عطا فرما۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ ترکھر قلوبنا من کل وصف وعیدنا ام مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی سنت والجماعت والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔